નમસ્કાર વાલા ભાઈઓ બહેનો. ટાટ હાયર સેકન્ડરી મેન્સની તૈયારી કરતા તમામ ભાઈઓ બહેનોનું હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે હજી કટ ઓફ માર્ક્સ એ આવ્યું નથી. ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓનો એક પ્રશ્ન હોય છે કે કેટલા માર્કે અટકશે અથવા અમે મેન્સ આપી શકીશું કે કેમ. આ ઘણા બધા સવાલો છે. આપણે મેન્સની તૈયારી માટેના વિડીયો છે એ મૂકી રહ્યા છીએ. મોટે ભાગે 70થી 80 વચ્ચે જે ભાઈઓ બહેનોનું માર્ક્સ છે છતાં હોય એવા માટે પૂરો ચાન્સ એ રહેલો છે. ઘણા બધા ક્લાસીસવાળા અથવા યુટ્યુબમાં એવું મેં સાંભળેલું કે 65થી 70 વચ્ચે છે એ રહેશે, તો ખરેખર એટલું બધું છે એ હોતું નથી. એ બધા પોતાનો કોર્સ ખરીદવા માટે આ રીતની છે એ વાતો કરતા હોય છે. એટલે 70થી 80 વચ્ચે જો તમારે બનતું હોય તો તમે અવશ્ય શક્યતાઓ છે એ રહેલી છે. આપણે હિન્દી ભાષા શિક્ષણની જે પદ્ધતિ અને પ્રયુક્તિ એટલે કે આપણું જે મેથડના પ્રશ્નો છે એ હવે વર્ણનાત્મક રીતે 2 માર્કની અંદર કે 5 માર્કની અંદર છે પૂછાવાના હોય છે. તો ઘણી બધી મહેનતને અંતે એક સારી એવી મટીરિયલ છે એ ભેગું કરી અને તમારી સમક્ષ મૂકવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે. કેવા કેવા પ્રશ્ન પૂછાય છે એ બધી જ માહિતી છે એ આપણે જવાબ સાથે છે એ આપવાના છીએ. ખાસ દરેક ભાઈઓ બહેનોને કે આ પરીક્ષાનો મોકો છે એ વારંવાર મળતો નથી. 2-3 વર્ષે એક વખત મોકો આવે છે, તો બની શકે એટલી તમામ મહેનત છે એ તમારે સૌએ કરવી જોઈએ. અને એક વખત મહેનત કરી અને તમે જે સફળતા પ્રાપ્ત કરશો એ કાયમ માટે ટકી રહેશે. એટલે કોઈ કચાશ ન રહે એનું દરેકે છે ધ્યાન રાખવું. ઘણી બધી પીડીએફની પણ ચર્ચા થતી હોય છે. પીડીએફનો ખર્ચો કરીને પણ આપણે અભ્યાસક્રમને લગતું હોય, આપણને ગમતું હોય તો અવશ્ય એ ખર્ચીને પણ લઈ અને આપણે વાંચવું જોઈએ. કારણ કે અમુક નજીવી કિંમત છે આપણે ગમે ત્યાં વાપરતા હોય છે અને એક વખત સરકારી નોકરી મળે તો આખી જિંદગીભર છે એ ઘણી બધી આવક છે પ્રાપ્ત થશે. એટલે એ બધી ધ્યાનમાં રાખી અને આપ સૌએ આ વાંચન કરવું જોઈએ. અને જે વ્યક્તિઓને પીડીએફ લેવી છે એ પીડીએફ લેવા માટે પણ કઈ રીતની પદ્ધતિ છે એની વાત આપણે તમે જોયો. પીડીએફ જો તમારે જોતી હોય આ મેન્સ પરીક્ષા માટેની, તો આમ તો ધોરણ 11 વિશ્વ હિન્દી, ધોરણ 12નું હિન્દી, સાથે સાથે પ્રયોજનમૂલક હિન્દી અને આ પદ્ધતિશાસ્ત્ર, આ 4ની ભેગી એ કિંમત છે આપણે નક્કી કરેલી છે. આમ તો એકની 99 રૂપિયા કિંમત રાખેલી છે. ધોરણ 11ના 99, ધોરણ 12ના 99, પદ્ધતિશાસ્ત્રના 99 અને પ્રયોજનમૂલક હિન્દીના 99. તો એ 396 રૂપિયા થાય છે. પરંતુ હમણાં આપણે એક ઓફર મૂકી છે આપણા જે જૂના વિદ્યાર્થીઓ છે અને ખાસ તારીખ 6થી લઈ અને 10 સુધી જે ભાઈઓ બહેનો આ પીડીએફ છે ખરીદ છે તેને માત્ર આ 4 પીડીએફનો કોમ્બો 299 રૂપિયામાં છે મળશે. ત્યાર પછી જો કોઈ લેશે તો એના માટે 396 રૂપિયા છે કિંમત થવાની છે. એટલે વહેલા જેને મેન્સની પરીક્ષા આપવાની થશે એવા લોકોએ ખાસ આ ઓફરનો લાભ લેવો. અને ખૂબ નજીવી કિંમત છે, ઝાઝી કિંમત નથી, એટલી અત્યારે ખર્ચી નાખો. ને જો તમે મેન્સમાં સારા માર્ક્સ લાવશો તો 50,000ના મહિને પગારદાર તમે બની જશો. એટલે ખૂબ નાની કિંમત છે. નીચે આપણો મોબાઈલ નંબર આપેલો છે 9799369656, એના પર વોટ્સએપ મેસેજ કરવાનો છે. બની શકે તો ફોન ઓછો કરવો, મેસેજ દ્વારા છે માહિતી લેવી. કાંઈ ખ્યાલ ન આવે તો અવશ્ય કોન્ટેક પણ કરજો. વોટ્સએપ મેસેજ કરવાથી તમને એ QR આપવામાં આવશે અને QRને આધારે છે તમારે પેમેન્ટ કરવાનું છે. તમે પેમેન્ટ કર્યા પછી થોડા ઘણો વાર લાગે પીડીએફ મોકલવામાં, તો ચિંતા કરવાની કોઈ જરૂર નથી. તમને ટૂંક સમયમાં છે પીડીએફ મળી રહેશે. હવે આ બધી વાતો કર્યા બાદ આપણે કેટલાક પદ્ધતિશાસ્ત્રમાં કેવા કેવા પ્રશ્ન પૂછાય છે 2 માર્કમાં, 5 માર્કના, એની ચર્ચા હવે કરીએ. ભાઈઓ બહેનો, ટાટ હાયર સેકન્ડરીની પરીક્ષા પદ્ધતિશાસ્ત્રની અંદર કેટલાક પ્રશ્નો છે તમે આ જોઈ શકો છો કે કેવા કેવા પ્રશ્નો હોઈ શકે. તો નિમ્નલિખિત પ્રશ્ન કે ઉત્તર એક યા દો વાક્ય में लिखिए એમાં કેવા હોઈ શકે તમે આ જોઈ શકો. वाक्य के अंश लिपि के विकास की मुख्य 4 अवस्थाएं,
भाषा शिक्षा की पद्धतियाँ, प्रत्यक्ष पद्धति के मूल तत्व, परोक्ष पद्धति के मूल, आवा बधा प्रश्नों आवी शके। डॉक्टर वेस्ट पद्धति के मूल तत्व, गद्य शिक्षा के उद्देश्य, गद्य पाठ के विभिन्न अंग, वाक्य काव्य शिक्षा के महत्वपूर्ण अंग, कविता शिक्षण की प्रणालिका, व्याकरण शिक्षक की विधियाँ, मौखिक अभिव्यक्ति के अंग, लेखन शिक्षण की विधियाँ, अनुवाद के प्रकार, निबंध रचना के प्रकार, पाठ्यपुस्तक के बाहरी रूप गुण, हिंदी के शिक्षक की व्यावसायिक योग्यता, अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया। आ उपरांत मोटा प्रश्नों अंदर जोईए तो एटले के 5 मार्क के 200 થી 250 शब्दों में जो पूछाई थी वह मोटा, तो एमा संरचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार विस्तार से लिखिए, वाचन के प्रकार विस्तार से लिखिए, हिंदी के शब्दों के विभिन्न भेदों का परिचय देते हुए विभिन्न स्रोतों से हिंदी में आए हुए शब्दों की जानकारी दीजिए। आवा प्रश्न पूछाई सके। आ उपरांत अन्य मुद्दा सर है तो गुजरात राज्य में हिंदी शिक्षण के उद्देश्य, हिंदी की शिक्षा में मातृभाषा का उपयोग, तो आ बधे तमे जोई रह्या छो एवा प्रश्नों पण आवी शके छे। संक्षेप में उत्तर आपो। एनी अंदर पण आ रीतना कि राष्ट्रभाषा के स्थान पर हिंदी ही क्यों, मौखिक अभिव्यक्ति की शिक्षा के उद्देश्य, वाचन दोष दूर करने के उपाय, राष्ट्रभाषा हिंदी का महत्व बताइए, व्याख्यान पद्धति, पाठ आयोजन का महत्व, भाषा शिक्षा के सिद्धांत सूत्र, व्याकरण शिक्षा। तो आ बधा ज प्रश्नों से परीक्षा में आवी शके छे अने आना जवाब पण मित्रों आपणे बधाने खूब सारी रीते आपेला छे। पेलुं छे संरचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार विस्तार से लिखिए। तो संरचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार, वाक्य के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। पहलू से साधारण वाक्य, सरल वाक्य। तो जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे साधारण वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए कमला पढ़ती है। बीजो प्रकार से मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य हो और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। ये वाक्य व्यधिकरण योजक द्वारा जुड़े होते हैं। आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तीजो प्रकार से संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में कम से कम 2 मुख्य या प्रधान उपवाक्य हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसमें 2 प्रधान उपवाक्यों में से एक को प्रधान उपवाक्य और दूसरे को सामान्यधिकरण उपवाक्य कहा जाता है। उदाहरण के लिए 2 सरल वाक्यों को मेल, तुम जल्दी आओ और गीता को यहाँ भेजो। तो आ रीतने आ संरचना के दृष्टिए वाक्यना प्रकार हता। त्यार पछी बीजो प्रश्न है अर्थ अथवा भावद्योतन की दृष्टि से वाक्य के प्रकार। तो अर्थ अथवा भावद्योतन की दृष्टि से वाक्य के प्रकार 8 भेद है। एक तो पहलू है विधिवाचक, कोने कहवाय तो ऐसे वाक्यों में किसी कार्य के होने की सूचना मिलती है, उदाहरण नदी बहती है। बीजो प्रकार से निषेधवाचक, ऐसे वाक्यों में किसी कार्य के न होने का भाव प्रकट होता है, उदाहरण वह नहीं आया। तीजो है आज्ञावाचक, तो ए कोने कहेवाय छे। चौथुं से प्रश्नवाचक, तो एनी व्याख्या आपेली है। पांचमું से विस्मयादिबोधक, छठ्ठું से संदेहवाचक, सातमुं से इच्छावाचक और आठमुं से संकेतवाचक। तो 8 प्रकार जैसे अर्थनी दृष्टिए तो एना प्रकार है मित्रों अहीं आपेला छे। त्यार पछीनो प्रश्न एवो पण होय छे कि वाक्य के अंश अथवा वाक्य के मुख्य 2 अवयव बताइए। तो पहलू है उद्देश्य, जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कोई बात कही जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य के मुख्य अंश को कर्ता कहा जाता है। उदाहरण के लिए मोहन पढ़ता है में मोहन उद्देश्य है। उद्देश्य का विस्तार विशेष शब्दों द्वारा भी किया जा सकता है, जैसे छोटा पौधा मुरझाया गया में छोटा पौधा उद्देश्य है। बीजो है उद्देश्य बाद बीजो है विधेय। उद्देश्य कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। विधेय के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं: क्रिया और उसका विस्तार, कर्म और उसका विस्तार तथा पूरक और उसका विस्तार। तो आ रीते उद्देश्य ने विधेय। चौथो प्रश्न है हिंदी भाषा की ध्वनि व्यवस्था के अंतर्गत स्वर में कितने प्रकार है। तो हिंदी भाषा में स्वरों को मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है: मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर।
તો એની વ્યાખ્યા સાથે પણ મિત્રો માહિતી છે દર્શાવેલી છે। पांचमो है कि भारतीय आर्य भाषाओं के ऐतिहासिक विकास के प्रमुख चरण कौन से है? जवाब है कि भारतीय आर्य भाषा के विकास को 3 चरणों में बांटा गया है। प्राचीन आर्य भाषाएं जो 2000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व है, इसमें वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत शामिल है। बीजू से मध्यकालीन आर्य भाषाएं, तीजी से आधुनिक आर्य भाषाएं। तो ये त्यारबाद छठो प्रश्न, राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है? तो राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों को अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। शासकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग शुरुआत में 15 वर्षों तक जारी रखने का प्रावधान किया गया। 7वां प्रश्न है, हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के कितने भेद माने गए हैं? तो संज्ञा के मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित किया गया, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक आदि जैसे एना प्रकार से बताववामां आवेला है। खड़ी बोली के नामकरण के पीछे विद्वानों के क्या तर्क है? तो खड़ी बोली शब्द के अर्थ के संबंध में विभिन्न मत है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, उनके अनुसार खड़ी शब्द कठोरता का प्रतीक है जो उसे व्रजभाषा की कोमलता से अलग दिखाता है। सुनीति कुमार चटर्जी, उसका मानना है कि यह अकारांत या आकारांत बोली है, इसके लिए उसे खड़ी पाई के अधिक प्रयोग के कारण खड़ी बोली कहा जाता है। तो आ रीते विद्वानों मत है। 9मो प्रश्न है, एक आदर्श भाषा शिक्षक के मुख्य गुण क्या होने चाहिए? तो एक आदर्श हिंदी शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण और गहन ज्ञान होना अनिवार्य है ताकि वह छात्रों की जिज्ञासाओं को शांत कर सके। उसे न केवल सैद्धांतिक बातों का ज्ञान हो बल्कि वह उन्हें व्यवहार में भी उतारने में सक्षम होना चाहिए। शिक्षक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए क्योंकि बालक अपने शिक्षक के आचरण तथा आदर्शों का अनुसरण करते हैं। उसे शिक्षण विधियों, पाठ योजना निर्माण और प्रश्न पूछने की कला में दक्ष होना चाहिए। छात्रों के प्रति प्रेम, सहानुभूति और निष्पक्ष भाव रखने वाला शिक्षक ही विद्यार्थियों का सम्मान प्राप्त करता है। उसे कक्षा में साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों जैसे वाद विवाद और कवि गोष्ठी का आयोजन करने में भी कुशल होना चाहिए। शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए ताकि वह भय और असुरक्षा की भावना से मुक्त होकर पढ़ सके। अंततः उसे अपनी वेशभूषा और व्यवहार को सादगीपूर्ण और गरिमामय बनाए रखना चाहिए। 10वां प्रश्न है, भाषा शिक्षण में मनोविज्ञान के ज्ञान की क्या भूमिका है? तो विद्यार्थी मित्रों, आ रीतना घણા બધા પ્રશ્નો આની અંદર આપેલા છે। हिंदी शिक्षक के लिए विशेष पर अधिकार क्यों होना आवश्यक है? कक्षा की समस्याओं के समाधान में क्रियात्मक अनुसंधान का क्या महत्व है? श्रवण कौशल का अर्थ और उसकी शिक्षण प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। वांचन कौशल और साधन पढ़ने में क्या है? तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों 131 पेज आखी पीडीएफनी अंदर जोवा मळे छे। आ बधी આપણે એક પછી એક વિડીયો બનાવીશું તો ઘણો બધો સમય વી જશે અને પરીક્ષા ઝાઝા દિવસો આપણી પાસે નથી, તો તમે આની પીડીએફ એક વખત અવશ્ય લઈ લેજો। 4નો આખો કોમ્બો છે જે 299 રૂપિયામાં છે। ઘણા બધા પરીક્ષાની દૃષ્ટિએ મહત્ત્વના તમે આ જોઈ શકો આવા પ્રશ્ન છે પૂછાઈ શકે એવી બધી જ પ્રશ્નોનો સમાવેશ કરેલો છે। સ્વ वाचन और मौन वाचन के अंतर में एक महत्व को स्पष्ट करे तो ये है शिक्षा की आधुनिक अवधारणा में शिक्षक की बदलती भूमिका को स्पष्ट कीजिए। आवो प्रश्न है, एक हिंदी शिक्षक के लिए विषय का पूर्ण ज्ञान होना क्यों अनिवार्य है? आवो प्रश्न आवे तो तमे लखी सको। भाषा शिक्षक की व्यावसायिक दक्षता में आप क्या समझते हैं? आम एक एक थी चढ़ियाता आखी आ पद्धति शास्त्रनी अंदर मित्रों प्रश्न से आपेला है। हिंदी शिक्षक के लिए हिंदी भाषा पर पूर्ण अधिकार क्यों आवश्यक है? ये प्रश्न है। शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य शिक्षण प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करता है? एक उत्तम संगठनकर्ता के रूप में शिक्षक के क्या कर्तव्य है? आवा घણા બધા
प्रश्न है कि भाषा शिक्षक को प्रेरणा का स्रोत क्यों कहा जाता है। हिंदी साहित्य का ज्ञान एक भाषा शिक्षक के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। आ उपरांत घણા બધા अन्य પણ પ્રશ્નો છે રહેલા છે। भाषा की परिभाषा और उसके सामाजिक महत्व को स्पष्ट करें। भाषा की प्रमुख विशेषता और उसकी प्रकृति का वर्णन कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों आवा घણા બધા છે પ્રશ્નો। વિડીયો ખૂબ લાંબો થઈ જશે એટલે આની PDF તમે લઈ લેજો, પર એક વખત ખર્ચો કરી નાખો પછી આજીવન છે તમને શાંતિ મળશે। ખૂબ સારી અને દિલથી મહેનત કરો અને સૌથી વધારે માર્ક્સ છે આવે એવી આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ। અને અન્ય વિષયમાં પણ આ જ રીતની PDF છે જોવા મળે છે, એટલે તમારે કોઈ જાતની ચિંતા કરવાની જરૂર નથી। હિન્દીની આવી PDF છે તમને અન્ય કોઈ જગ્યાએથી પણ મળશે પણ નહીં। તમારા માટે જ આ બધી મહેનત કરેલી છે, એટલે અવશ્ય આનો લાભ લો અને સારા માર્ક્સ લાવી અને સરકારી નોકરી પ્રાપ્ત કરો। મળીએ આપણે નવા જ વિડીયોમાં।